Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to today's episode on Talk Shop by Faiza. I'm very, very honored that today's guest is an extremely important personality, a celebrity in her own rights. Thank you all. जैसे ही इनका we uploaded her flyer on the Facebook, the team at Connective Consultant received so many responses in their email. There are plenty of questions. We'll try and take all of them up today. Just to give you a short introduction to who Miss Maliha Hussain is, she's right now working as an executive director with Meherghar, a center for learning in Islamabad. She's a lead trainer on the topic of how to respond to queries on sexual harassment and the act which was passed in 2010 in Pakistan on women protection at work act. She's also training multiple people, multiple industry, corporate, private, public, all of them on how to respond to the queries, how to do the research work which can help the victims. So आज हम जो इनके साथ बातें करेंगे वो इनके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी होंगी और पर्सनल लाइफ के बारे में भी होंगी. So for the sake of better reach of this program, we are going to keep the conversation bilingual, English and Urdu, combination of both. So, ma'am, I very warmly welcome Ms. Malia Hussain. Ma'am, thank you so much for giving us time. I know you had a very busy schedule and it was not easy for you to make out time for us. Thank you so much. Thank you. Assalamu alaikum. And thank you for thinking of me. I would love to talk to you all. I always like talking to young people because, you are the ones who are going to take this work forward that we've been doing. So it's a pleasure. It's actually, ma'am, a pleasure for all of us to be living in a time where we can sit with you and learn from people like you. You are a legend in the field that you are associated with. मिस मिलिया की एक बड़ी ज़बरदस्त बात मैं आप सब लोगों से शेयर करूँ. अल्लाह मियाँ हर एक के ज़िम्मे कुछ काम लगाता है और इनके ज़िम्मे एक बहुत बड़ा काम लगा हुआ है और इनके हाथों से लोगों के लिए आसानियाँ हो रही हैं, लोगों के लिए ये लाइफ आसान कर रही हैं, स्पेशली विमेन इन पाकिस्तान. जो इनका ये काम है, अगर आप उनकी वेबसाइट जिन लोगों ने विजिट की और हमें बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन आई है कि थैंक यू फॉर डूइंग सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इतनी बड़ी पर्सनालिटी के साथ आपको लाइव बात करने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह. और हम बहुत से क्वेश्चन जो आपने किए हैं हम उनके आंसर इनसे लेंगे आज मिस मलिया से. वी आर वेरी थैंकफुल कि शी विल बी वेरी कैंडिड एंड ऑनेस्ट in guiding us how to go about those things that you have asked us. So, Miss Maria, before we go to that particular aspect, let's talk about you. Let's tell us about a little bit about your childhood. My childhood. I think when I think of my childhood, the main things that come up are going to Lahore in every like a summer break and sometimes in the winter break also. Spend our summer breaks there because that is where most of our family members lived. My nanny making nice foods for us and nice clothes for us, and my dadi telling us stories and playing around and animals and plants. लुकाट तोड़ के खाते थे और अमरूद तोड़ के बाग से खाते थे और सब्जियां खेत होते थे वो ताजी लेके आते थे. सो नेचर के साथ बड़े हुए या बचपन का बहुत सा वक्त गुजारा. And then if I think more about my childhood, हिंदी का पेशावर. So पढ़ाई was very important. पहले पढ़ाई उसके बाद खेल. हमारे वालिद जो हैं वो कहानियां सुनाते थे और लाइफ और टाइम की जो किताबें होती हैं वो होती थी. तो वो पढ़ाई के अलावा लेकिन एजुकेशनल चीज़ें, ट्रैवल, मेरे वालिद हमेशा कहते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए कि बच्चे किताबों से इतना नहीं सीखते जितना ट्रैवलिंग में सीखते हैं. तो वी यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट विद इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड. माशाल्लाह. तो इस तरह की चीजें. और अब इस उम्र में आके जब आप काम के दौरान अपने बचपन का सोचो तो मुझे ऐसे लगता है कि अब जो
हमें इर्द गिर्द एथिक्स की कुछ कमी नजर आती है। अ, और मैं अपने बचपन का सोचती हूँ तो हमारे एथिक्स बहुत से लोगों से मुख्तलिफ क्यों हैं? हमने अपने घर में जो देखा था वही आप फिर सारी उम्र आपके साथ रहता है। तो मुझे पता नहीं कि बहुत से लोगों का ये इतनी तब्दीली कैसे आ गई एथिक्स में। Pakistanis used to be a much better people as we were growing up. काम अपना पूरा करते हैं, नौकरी जो है वो अपनी ईमानदारी से करते हैं, अपने पैसों को हलाल करना है। हमें किसी ने बताया नहीं था, लेकिन हमने घर में देखा था। जबरदस्त। हमने अपने वालिद को बचपन में जो काम करते हुए देखा, तो यही देखा कि वो कभी बीमार भी होते थे और छुट्टी खत्म हो गई तो वो कहते थे कि विदाउट पे छुट्टी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो उसी तरह काम पे जाते थे। उनके ऑफिस वाले, उनके बॉस कहते थे कि जी नहीं है छुट्टी तो कोई बात नहीं, हम आपकी वो अप्रूव करते थे, एक्सटेंड करते थे। वो कहते थे कि नहीं, मेरी जितनी बनती है छुट्टी वो खत्म हो गई तो या विदाउट पे लूंगा या काम पे जाऊंगा। माशाल्लाह। तो वो दोनों में से होता था, या विदाउट पे छुट्टी या काम पे उसी तरह मुझे पकड़ के, उनकी कमर में दर्द होती थी, सोटी पकड़ के जाते थे। तो आप जब ये चीजें देखते हो बचपन में अपने घर में, तो फिर ये आपके जैसे वो घुट्टी में बैठ जाती हैं, वो निकलती नहीं है चीजें। these things stay with you for life. तो वो एब्सोल्युटली। जो देखा हुआ है, रमजान में भी मैं देखती हूँ आजकल कि रोजा रख के लोग काम नहीं करते, देर से दफ्तर आते हैं, जल्दी घर जाना चाहते हैं, इबादत करनी है, नींद नहीं पूरी हुई। हमने तो बचपन में कभी ऐसा ना देखा था और ना कभी सारी उम्र किया। बिल्कुल हम बिल्कुल। तो मुल्क से बाहर भी पढ़े भी, काम भी किया, तो वहां तो इस्लामी मुल्क नहीं था और वहां पे हम सुबह 3 साढ़े 3 बजे सहरी होती थी और उस वक्त जो रोजा रखते थे रात को 9 बजे मगरिब होती थी। ट्रू। आप नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में चले जाओ तो बहुत लंबे रोजे होते हैं, और रोजे रख के पढ़ते भी थे और काम भी करते थे। यू वेरी केपेबल ऑफ डूइंग इट। एब्सोल्युटली, इट्स जस्ट अ माइंडसेट, आजकल है ना, परसेप्शन। कुछ बहुत आराम की आदत हो गई है, काम ना करने की आदत हो गई है। सो मेरे जैसे जो पुराने जमाने के लोग हैं, हमें ये चीजें समझ में नहीं आती बिल्कुल कि सही कह ऐसा रहे कोई कैसा कर सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज व्हाट वी सी अराउंड अस। हो, People बिल्कुल ऐसे ही है। not very willing to work, not all of them, but quite a few of them, बिल्कुल सही which कह is a रहे little sad. हो, दिस या इज हम वेरी जैसे सैड। लोगों को लगता है। नहीं नहीं मैम, यू आर एब्सोल्युटली राइट। दिस इज वन ऑफ द डिलेमा दैट वी आर ऑल आर फेसिंग एज अ नेशन, or especially when we go abroad, like people like me, when we go abroad, तो जो हमारे से पहले वहाँ लोग जाके वहाँ पे खराबियाँ पैदा कर चुके हैं, हमें भी उसी स्ट्रीम में जनरलाइज करके वैसे ही ट्रीट किया जाता है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, बिल्कुल, या क्योंकि वो सब कह रही है पाकिस्तान से आए हैं, शायद इनका एक ही तरीका है, ये सब एक तरह के सोच के लोग हैं, ये इनमें कोई फर्क नहीं होगा। तो वी हैव सफर्ड, मतलब आई व्हेन आई वाज इन इंग्लैंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ नॉट टू सफर दैट पर्टिकुलर bias because of holding the green passport, but a lot of people have gone through, they have shared their stories multiple times that because of the people who have gone before them and how they have राइट। interacted with the society there, they have left a dent in that particular image of being a Pakistani. तो अब हमारे साथ अगर हमारे साथ पास कोई लोग ऑनेस्ट हैं तो उनकी इज्जत जो है वो हमें करनी चाहिए। ये एक मैसेज है हमारा इस प्रोग्राम का भी कि ऑनेस्टी जो है उसको अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल है। जैसे आपने जिक्र किया कि चाइल्डहुड आपका बड़ा सिंपल था और उसमें अदब का बहुत ताल्लुक था, उसमें वैल्यूज़ का बहुत ताल्लुक था। तो ये एक चीज़ है जो वाकई इसेंशियली खत्म होती जा रही है। राइट, सिंपल बट इट वाज अ वेरी हैप्पी चाइल्डहुड। माशाल्लाह। हम खेलते थे, हर रोज शाम को खेलते थे, साइकिल बाइसिकल, मुझे याद है पिंडी में हम रहते थे तो रोज शाम को दोपहर के बाद सो जाते थे गर्मियों में और उठ के होमवर्क करते थे और उसके बाद बाहर खेलते थे और साइकिल चलाते थे 8th ग्रेड तक जब पिंडी में रहे। उसके बाद पेशावर चले गए थे तो वहाँ का माहौल जरा मुख्तलिफ था, पर पिंडी में हम कंटोनमेंट के एरिया में रहते थे एंड वी यूज्ड टू बाइक एवरी इवनिंग। कोई माशाल्लाह। प्रॉब्लम नहीं था और सड़क पे आते थे
लड़कियां या लड़के, तो वी यूज्ड टू बाइक अराउंड, कभी अच्छा, कोई इशू नहीं था। तो वो उस तरह का फिजिकल एक्टिविटी भी और किताबें भी और वो ये सब कुछ, इट वाज अ वेरी गुड लाइफ, it's a very सिंपल बट well-rounded वेरी गुड एंड experience वेरी of, हैप्पी। yes, well-rounded experience, and it reflects in, you're brought up, mashallah, कि you're such a grounded person, माशाल्लाह से। और बहुत आपकी यानी कि वो जो एक मेच्योरिटी, एक सोबराइटी है, वो आपकी हर बात से, जितनी मेरी आपके साथ इंटरेक्शन हुई है उसमें रिफ्लेक्ट होती है, विच इज़ नाउ बिकमिंग अ रेयर रेयर थिंग। एक नॉलेज के साथ जैसे कहते हैं कि हम्बलनेस आती है, वो माशाल्लाह आप में रिफ्लेक्ट भी होती है। तो आपने मैम जिक्र किया कि जैसे आपका मैं जो आम सा इंसान हूँ, आप इतने वो नहीं नहीं, तारीफ नॉट करते, तो दैट मेक्स मी वेरी अनकंफर्टेबल। आई एम अ रेगुलर पर्सन, कोई ऐसा नहीं है, बस ईमानदारी से अच्छी नीयत के साथ अपना काम करें, दैट्स अबाउट इट, ये बहुत ज़बरदस्त नथिंग बात मोर है। देन दैट। ये बहुत ज़बरदस्त बात है। दिस इज़ वन ट्रेड जो मेरे ख्याल में हम सबको अडॉप्ट करनी चाहिए, कि जो हमारे अल्लाह ने जिम्मेदारियां लगाई हैं हम उनको पूरा करने की कोशिश करें, चाहे वो प्रोफेशनल है या पर्सनल हमारी ऑब्लिगेशंस हैं। उनमें शॉर्टकट्स ढूंढने की जो आदत एक डेवलप होती जा रही है लोगों के अंदर, मेरे ख्याल में उसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए। उसकी वजह से बड़ी ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं। और जो न्यू जनरेशन है, क्योंकि वो फिर बड़े अपने एडल्ट्स को ऐसा काम करते देखते हैं, तो वो भी ये अस्यूम करने लग जाते हैं कि शायद प्रॉब्ली ये बेस्ट वे है टू डू थिंग्स। राइट, इट्स इजी सो इट मस्ट बी या देयर मस्ट बी गुड। समथिंग बिहाइंड। या मैम, आपने हाँ अपनी जिक्र किया कि आपने चाइल्डहुड में बहुत आपने ट्रेवल किया था विद इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड, तो दिस मीन्स दैट जी you must have changed a lot of schools, and you must have, during your childhood, you must have visited so many cities in Pakistan. So how did you cope up with study or school changes or uh, things like that? you know, I start, my father was in PIA. Acha, mashallah. He was an engineer in PIA, and like, you know, people in the armed forces, people in PIA also get posted every 2 to 3 years. Yes. तो बस ये था कि जब पोस्टिंग ऐसे शहरों में होती थी जहाँ एयरपोर्ट्स होते थे, तो बड़े शहर होते थे, लाइक कराची, लाहौर, पिंडी, पेशावर, तो उन शहरों में ज्यादा रहे। माय उसके बाद फिर वेस्ट पाकिस्तान के बाकी शहरों में स्कूल्स, जैसे पिंडी, पेशावर, लाहौर, सेंट मेरीज और प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट, तो वो उनकी कुछ कुछ चीज़ें कॉमन होती थी, और एक स्कूल से दूसरे में शहर में जाते थे तो वो फिर एडमिशन आसान हो जाती थी, और उनका माहौल और पढ़ाई का तरीका मिलता जुलता होता था, तो दैट काइंड ऑफ हेल्प। But in every city we used to or had to make new friends and new teachers, different teachers, so wo, you sort of get used to the idea. Uske baad once we were in higher grades, Peshawar mein gaye, to my father said ki okay, now my children are growing up and in these classes, you know, my being posted is going to impact the education, so I'm not going to move from here. So वो जब उनकी अगली दफा पोस्टिंग होती थी, वो रेजिग्नेशन लिख के दे देते थे, और ऑफ कोर्स ही वाज सो सीनियर, तो वो कहते थे नहीं नहीं नहीं, अच्छा चलो आप यहीं पे रहो। अच्छा, So nice. the rest of my education I completed in Peshawar presentation convent से मैट्रिक किया, and then I went to Peshawar University. अच्छा, nice. तो it worked out, आपको अलग अलग तरह के लोगों के साथ रहने का मौका मिलता है, तो आई थिंक बच्चों के लिए अच्छा होता है। एक जगह रहना भी अच्छा होता है, वो स्टेबिलिटी आ जाती है, लेकिन ट्रैवल कर रहे हो, घर अगर आपका स्टेबल है ना, आपकी फैमिली क्लोज है, तो वो फिर बहुत फर्क नहीं पड़ता। यू लर्न टू लिव विद डिफरेंट पीपल एज यू मूव। ऐसे तो आपने बड़ा अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त बात आई है, आपने पेशावर से अपनी कॉलेज लाइफ और इन यूनिवर्सिटी लाइफ देखी। जी, तो बैक पेशा देन यूनिवर्सिटी पेशावर से। बहुत फ़र्क होता होगा, जैसे अब से तो बहुत फ़र्क होगा। अरे बहुत फर्क, हाँ। बहुत फर्क था। मैंने मैट्रिक 71 में किया था, और ग्रेजुएट किया था होम इकोनॉमिक्स कॉलेज है पेशावर यूनिवर्सिटी में, वहां से 75 में। तो उस जमाने का पेशावर, इट वाज सच अ ब्यूटीफुल सिटी, अच्छा, क्लीन एंड माल होती थी और सदर, और फिर जब आप
सदर से यूनिवर्सिटी टाउन जाते थे तो वो दोनों तरफ सड़क के खेत होते थे, वो तहकाल बाला आता था, वहां पे एक छोटा सा तंदूर, थोड़ी सी दुकानें, फिर आपको एयरपोर्ट की वो जो रनवे है वो वहां तक आती थी, तो जहाज टेक ऑफ लैंड करता कोई ना कोई नजर आता था जब भी आप वहां से गुजरते। यूनिवर्सिटी टाउन यूनिवर्सिटी मेन होती थी और इधर उसके ऑपोजिट साइड पे यूनिवर्सिटी टाउन। अब बहुत बदल गया। उसके बाद मैं बहुत साल तक नहीं जा पाई पेशावर में, और जब बाद में गई तो अम, हम उस सड़क पे, मैं और डॉक्टर फौजिया जा रहे थे और हमने अपनी यूनिवर्सिटी मिस कर दी और आगे चले गए, क्योंकि यूनिवर्सिटी के गेट तो कुछ होता ही नहीं था, खाली जगह थी और आपको दूर से वो बड़ा सा गेट नजर आता था। तो अब वहां पे इतनी कंस्ट्रक्शन हो गई है कि वी मिस द यूनिवर्सिटी, आगे चले गए और हमने कहा इतना आगे तो नहीं थी, और फिर हम वापस आए तो फिर ढूंढते हुए आए तो यूनिवर्सिटी नजर आई। but it used to be a very different city at the time. जबरदस्त मैम, ये तो मतलब you must have made tons of memories and it seems that जितनी आप खुशी से बता रही हैं, they're all happy memories. Oh, very happy memories. Yes. Asha. So, Yeah. ma'am, you went abroad as well. You stayed in USA and you have worked there as well, and you have worked on empowering women. And बहुत सारे आपने initiatives पे काम किए, Economically, जी. इकोनॉमिकली आप Right. बहुत सारे काम किए। तो मैम, आप पाकिस्तान वापस आने का फिर आपका कैसे इरादा बना? आपका यूएसए जाने का कैसे इरादा हुआ when you were so happy here and you had everything? और फिर हमें बताइए कि आपका वापस पाकिस्तान आने का कैसे इरादा हुआ? हाँ, पढ़ने के लिए गए थे और फिर वहीं रह गई। तकरीबन 30 साल वहां रही, लेकिन वापस आने का जो है, डॉक्टर फौजिया एंड her husband had been asking me for a few years as they were working. Dr. Fauziya was working on getting these laws passed, anti-sexual harassment laws. वो कहते थे बहुत काम है, आप आ जाओ, और मैं कहती थी नहीं, मेरे बच्चे छोटे हैं। मेरी बड़ी बेटी तो पीएचडी करके वापस आ गई थी, बेटे अभी जरा छोटे थे, उन्हें मैं अकेला छोड़ नहीं सकती थी, और वहां पे सेटल थे। तो मैं कहती थी अच्छा अभी नहीं, अभी नहीं, लेकिन यू नो एज दीज लॉज वर गेटिंग पास्ड, end of 2009, beginning of 2010. At that time when Dr. Fauziya said कि आप आ जाओ, हेल्प कर यहाँ पे जाइए इम्प्लीमेंट करने में, तो I asked my twins, my sons, तो वो थोड़ी डिस्कशन हुई कि क्यों जाना जरूरी है। अमर ने कहा कि you know if that is what you want to do, you should go back and you know do it. The other one, समर ने कहा कि why do you have to, why do we have to live alone? तो वो करते करते उन्होंने कहा कि नहीं, we are old enough to take care of ourselves. आप if this is what you really want to do, you go ahead. तो बस फिर डिसाइड कर लिया, वहाँ पे अच्छी जॉब की, वो छोड़ी, वापस आ गए पाकिस्तान, एंड आई हैड एक्चुअली कम बैक फॉर अ ईयर। मैंने कहा जाऊंगी फौजी के साथ लॉ को इम्प्लीमेंट करा के 1 साल में वापस आ जाऊंगी। आई हैड नो क्लू ऑफ व्हाट आई वाज गेटिंग इनटू। और 1 साल के बाद बच्चों ने कहा कि अच्छा अब साल पूरा होने वाला, आप वापस आ रही हैं। तो मैंने कहा अभी तो हमारा काम शुरू ही हो रहा है। तो वो मैंने कहा अच्छा 1 साल और ट्राई करती हूँ, अभी नहीं आ सकती, छोड़ नहीं सकती बीच में जो शुरू किया। यू नो इतने बड़े काम को शुरू करते करते आपको बहुत धक्के लगाने पड़ते। लॉ बनाना वाज ह्यूज, जो मेरे आने से पहले इन लोगों ने जो काम किया था 10 साल लॉ बनवाने का, वही लगता था कि इतना काम कैसे कर लिया इन्होंने। लेकिन उसको बिल्कुल भी आसान नहीं है। हमारे जैसे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में इस तरह की बातें करना, इस तरह की इनिशिएटिव्स देना। राइट। और फिर आप अगर ये देखो कि इससे पहले औरतों की राइट्स के लिए कब कौन से लॉ बने थे? तो कहते हैं जी वो वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2006 का, तो वो तो आपने हदूद में से रेप निकाल के वापस पीपीसी में डाल दिया, या यू नो इस तरह की चीजें, उसको हम मेजर लेजिस्लेशन नहीं मानते। मेजर लेजिस्लेशन हुई थी 1961 में जब मुस्लिम फैमिली लॉज बने थे, अयूब खान के जमाने में, और
उसके बाद तकरीबन 50 साल आप देखो कोई मेजर लेजिस्लेशन औरतों के लिए नहीं हुई। ट्रू। और फिर बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ, ये जो 2 लॉज दैट वर पास टू कर्ब सेक्सुअल हरासमेंट इन आवर सोसाइटी। और वो 2 लॉज पास करवाने में जैसे ये आशा मेंबर्स ने, डॉक्टर फौजिया ने जो पार्लियामेंट को सेंसिटाइज किया, एक एक पार्लियामेंटेरियन के साथ, चाहे नेशनल असेंबली थी चाहे सेनेटर्स थे, तो वो उसका फायदा ये हुआ कि आप देखो कि उसी एक गवर्नमेंट ने इन 2 लॉज के बाद 4-5 और लॉज पास किए। अच्छा। तो ये वाली गवर्नमेंट जो थी वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा एक गवर्नमेंट ने एक टर्म के अंदर इतने औरतों के लिए लॉज पास किए थे, और द जबरदस्त। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और फिर वो जो पार्लियामेंटेरियन सेंसिटाइज हुए थे, तो उसके बाद भी जो दूसरी गवर्नमेंट आई इलेक्शंस के बाद, तो उन्होंने भी ये काम किया। फिर वो डेवोल्यूशन हो गई थी, 18th अमेंडमेंट पास हुई, तो ये सब्जेक्ट औरतों वाला प्रोविंसेस को चला गया, ये औरतों का डिवॉल्व हो गया था। तो प्रोविंसेस ने फिर लेजिस्लेशन शुरू की। सिंध ने सबसे अच्छा किया, बलूचिस्तान में हुए, पंजाब में हुए, खैबर पख्तूनख्वा थोड़ा थोड़ा सा पीछे है, बट होपफुली दिल कैच अप। तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था ये जो 2 लॉज पास हुए थे। हाँ, आई तो थिंक मैं जब, है ना, बिल्कुल हिस्टोरिकल एक एक्ट था पाकिस्तान की हिस्ट्री। दे मेड हिस्ट्री by getting, एब्सोल्युटली they made history by एब्सोल्युटली making people understand the importance of it. पहले तो 10 साल जो आप जिक्र कर रहे हैं उन्होंने स्ट्रगल करी, and then making, politicians sit together, think about it, and passing laws, very detailed laws on it. एक बहुत historic काम था। बहुत बहुत आई थिंक औरतों की हिस्ट्री पाकिस्तान में इन लॉज के साथ बदलनी शुरू हुई। Absolutely, absolutely. So एंड मैम द वे आप सॉरी, जी जी बताएं। द वे दे आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, लॉ बनता है, पार्लियामेंट बनाती है, लोगों ने साथ मिलके बनवाया, और लॉ जैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो दैट इज व्हाट इज मेकिंग अ डिफरेंस। तो लॉ बनवाना बहुत बड़ी बात थी, और पिछले 10 साल, अब तो 10 साल से ज्यादा हो गया, वी आर इन आवर 11th ईयर नाउ, the implementation of this law is actually bringing about that change, जो हमें लग रहा था कि औरतों की हिस्ट्री बदली जाएगी इन लॉज के साथ, and we are seeing it happening. We are actually witnessing it, we are a part of that change. तो अच्छे से जा रहा है, बहुत अच्छे से जा रहा है। माशाल्लाह। तो मैम आप यूएसए में भी इसी फील्ड से रिलेटेड थी, क्योंकि वहाँ तो आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो प्लेटफॉर्म्स हैं या वो इनिशिएटिव्स हैं उन पे काम करी थी। तो फिर आपका इस तरफ कैसे ख्याल आया कि ये एक चीज़ है, क्योंकि एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट जिस ज़माने में ये डिस्कशन स्टार्ट हुई थी, और जब आप पाकिस्तान में आई थी 2009 में भी, तब भी ये इतना कोई आसान काम नहीं था इसको ज्वाइन करना, इसके बारे में सोचना, इस मूवमेंट के साथ अपने आप को अटैच करना। यू मस्ट बी लिविंग अ वेरी लुक्रेटिव लाइफ इन यूएसए। सो यूएसए में आप किन इनिशिएटिव्स पे काम करी थी, उन्होंने कैसे आपको हेल्प किया, सपोर्ट किया इन अंडरस्टैंडिंग कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है और इसमें आपकी एक्सपर्टीज ज़रूर काम आएंगी? ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा नहीं। पता है, आप अपनी जिंदगी गुजारते जाते हो, मेरा कोई उस तरह से प्लान्ड करियर नहीं था। वहां भी कॉमन जो चीजें हैं वहां के काम में और यहाँ के काम में, कि both aspects of my work had to do with the economic development of women. अमेरिका में जो मैं काम कर रही थी, I was helping women start small businesses, small and medium enterprises. वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन थी, Women Venture, तो वहाँ पे मैं काम कर रही थी, और मैं as a business consultant काम किया, and then I was heading the micro enterprise development program. और वो प्रोग्राम में बिजनेस एजुकेशन और हेल्पिंग वुमेन स्टार्ट स्मॉल बिजनेसेस। वी हैड आवर ओन लोन फंड, तो जिसको फंडिंग चाहिए होती थी, हम अपने लोन फंड से, जो बैंकेबल नहीं होते थे हमारे क्लाइंट्स, तो औरतों को इकोनॉमिकली एम्पावर करना। और अभी जो मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, एंटी सेक्सुअल हरासमेंट लॉ की इम्प्लीमेंटेशन, तो उससे होता ये है कि जब ऑर्गेनाइजेशंस लॉ से कंप्लाई करती हैं, तो इट इम्प्रूव्स देयर वर्क एनवायरनमेंट।
And when you have a good environment, it becomes easier for women to continue their work, or more women get permission to join the workforce because they know that, you know, they'll be able to work in a respectful environment. तो वो इस तरह से जुड़ा हुआ इकोनॉमिक डेवलपमेंट औरतों की. लेकिन लॉ जो है ये एक्चुअली मर्दों औरतों दोनों को प्रोटेक्ट करता है, बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, इवन ट्रांसजेंडर्स, बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, टू बी एबल टू अर्न अ लिविंग विद डिग्निटी. तो ये एक कॉमन थ्रेड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वुमेन का, जो मेरे अमेरिका के काम का और यहाँ के काम का है. बट अदर देन दैट इट वाजंट प्लान्ड दिस वे. पर एक बात मैं कहूंगी कि हम जो भी अपनी जिंदगी गुजारते हैं, अच्छे एक्सपीरियंसेस, बुरे एक्सपीरियंसेस, दे कीप you know adding to who we are as people. बिल्कुल सही कह रही है. है ना, हमारी जो जो लर्निंग होती है, जो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो हमें शेप करते जाते हैं एज अ पर्सन. हम कौन इंसान बनते जा रहे हैं अपने उन सारा एक्सपीरियंसेस की वजह से. तो जो भी अभी तक जिंदगी गुजारी है, वो जिंदगी का हर एक्सपीरियंस, चाहे पर्सनल है चाहे प्रोफेशनल है, that has made me who I am today. माशाल्लाह, माशाल्लाह. बचपन में जो वो मैं डिटेक्टिव स्टोरीज टीवी जब शुरू हुआ था जो देखा करती थी, और आयरन साइड और कोलंबो और वो बड़े गौर से, एंड आई रियली लव दोज शोज. तो अब जब केसेस सेक्सुअल हरासमेंट के आते हैं और उनकी इंक्वायरी में कमिटीज को हेल्प चाहिए होती है, तो मैं सोचती हूँ कि वो वाले जो बचपन के देखे हुए प्रोग्राम्स है ना, वो अभी इतने काम आते हैं कि कभी सोचा भी नहीं था कि ये टीवी शोज देखने का कभी कोई फायदा भी होगा. वो डिटेक्टिव स्किल्स आपने डेवलप खुद ब खुद हो गया, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो प्रोग्राम अच्छे लगते थे, देखते थे बहुत शौक से, और वो अब काम आ रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. It's interesting when you look back at life. Absolutely. How everything sort of comes together. माशाल्लाह. जो आप सोच भी नहीं सकते, जो आप कुछ प्लानिंग के तहत नहीं कर रहे थे, but it all comes together in the end. बिल्कुल, जैसे मैंने इस प्रोग्राम के शुरू में कहा कि अल्लाह ने कुछ लोगों को चुना होता है और उनके ज़िम्मे कुछ काम होते हैं और उनके हाथों से अल्लाह ने कोई काम करवाने होते हैं. तो माशाल्लाह आप एंड डॉक्टर फौजिया और जितनी भी टीम्स इन्वॉल्व थी, आप वसीला बने उन तमाम ख़वातीन के लिए जो पाकिस्तान में सफ़र कर रही थी, जिनको सुनने वाला कोई नहीं था. दे हैड एब्सोल्युटली नो वॉइस. उनके लिए आप लोगों ने इतनी ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करके, इतनी स्ट्रगल करके आप लोगों ने प्लेटफॉर्म्स दिए हैं. और अब माशाल्लाह 10 साल आपने बताया कि 10+ ईयर्स हो गए हैं उस लॉ के पास होने के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन तरफ जाते हुए. तो मैम ये जो महर घर है उसके थ्रू थोड़ा सा बताइए लोगों के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, कि क्या महर घर जो है वो पब्लिक सेक्टर्स को ट्रेन करता है या प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर्स की ट्रेनिंग करते हैं? वैसे तो लॉ की इम्प्लीमेंटेशन पूरे पाकिस्तान में करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी महरगढ़ ने ले ली थी. जब आशा जो थी ना, अलायंस अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, इट वाज अ वॉलंटरी मूवमेंट that started in 2000, and then they had these laws passed, working with the government, with the parliament, and even after the laws were passed, they gave themselves 2 years to start the implementation process. तो 2 साल implementation process अच्छे से organized तरीके से शुरू करके फिर एक बहुत बड़ी celebration के साथ उन्होंने आशा को बंद कर दिया था. तो जब आशा खत्म हुई तो उसके बाद मेहरगढ़ was actually the secretariat of this alliance, आशा. तो हमने फिर ये responsibility ले ली कि आशा बंद हो गई. We were the secretariat. We will continue the work that Asha was doing. तो वो तब से फिर laws जब से पास हुए, उसके 2 साल के बाद जब आशा बंद हो गई, तो मेहरगढ़ ने ये responsibility ली हुई है, या अपने को खुद ही responsibility दी हुई है कि we will continue working on the implementation of this law throughout the country in all the sectors. तो वो हम करें. मेहरगढ़ वैसे जो बना था, डॉक्टर फौजिया सईद और डॉक्टर कामरान अहमद ने बनाया था, वो बनाने का मकसद यूथ लीडर्स के साथ काम करना, या अपनी यूथ को एक्टिविज्म की स्किल्स ट्रांसफर करने के लिए इन्होंने बनाया था. तो मेहरगढ़ का एक जो बड़ा प्रोग्राम है शुरू से, जिस वजह से ये बना था मेहरगढ़,
वो यूथ के साथ काम है, वो अभी भी हमारा चलता है. दैट इज लाइक मेहर डजंट वर्क ऑन short term projects. We have long term programs. तो एक हमारा यूथ लीडरशिप प्रोग्राम है जो हमारा साथ साथ चलता है, और ये दूसरा जो प्रोग्राम है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, औरतों की लेजिस्लेशन के हवाले से, आशा का सेक्रेटेरिएट था, अब लॉ की इम्प्लीमेंटेशन. सो दैट इज ऑल्सो अ लॉन्ग टर्म प्रोग्राम जिसमें ये लॉ की इम्प्लीमेंटेशन पे हमारा अब फोकस है. पहले बनवाने पे था, अब उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने पे. Mashallah, ma'am, it seems like a very serious work, and I'm sure when you go out and roll out these trainings and you meet different people, especially youth, एक तो youth की सबसे बड़ी अच्छी बात ये पाकिस्तान में they come with a lot of good energy. They bring a lot of good energy on the table, and they're very positive. When you deal with them, you get to know that they have such talent that Pakistan seems like sitting on a talent dynamite, and it does feel that Absolutely. we are not using their talents. There are gaps जहाँ से हमें लगता है कि हम उनका वो उस तरह से इस्तेमाल नहीं करें. तो मैम कुछ क्वेश्चंस हमें आपके ये इस प्रोग्राम से पहले रिसीव हुए थे, तो आपकी इजाज़त से हम वो कुछ क्वेश्चंस क्वेरी सी लोगों प्लीज. तो एक मैम क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा था कि एक जो जो माइनर बच्चे होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल्स हैं, उनका जो इन्वायरमेंट है उसमें उनके पास क्या प्लेटफॉर्म है कि अगर कोई एडल्ट जो है वो कुछ सेक्सुअली अब्यूज़ करे उन्हें या हरेस करे. एक तो सेक्सुअल अब्यूज़ होती है, वो फ़र्क होती है, फिजिकल हिसाब से होती है, लेकिन कोई हरेस जैसे वैसे भी कर सकते हैं आप, किसी के देखने के स्टाइल से भी हरेस कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप अल्फाज इस्तेमाल. तो मैम ऐसे अगर कोई बहुत ज़्यादा इस तरह से गुजर है इस मामला, तो उन बच्चों के पास क्या प्लेटफॉर्म है, तो वो किस तरह से इसको कर सकते हैं? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ये इस तरह के इश्यूज बहुत होते हैं, सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, उनकी टीचर्स के साथ भी होता है. तो आई थिंक वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई नीड टू मेक हियर इज दैट ये जो एंटी सेक्सुअल हरासमेंट लॉ की मैं बात कर रही थी कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे हम काम करें. इट्स मैंडेटरी फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस इन द कंट्री टू कंप्लाई विद एजुकेशन. वो सब उसमें आ जाते हैं. तो पहली बात तो ये है कि स्कूल्स, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज में तो कुछ कुछ हो भी रहा है. दे नीड टू कंप्लाई विद दिस लॉ. ठीक है ना, ये लॉ जो है ये स्पेशल लॉ है, वो एक मैकेनिज्म देता है जो सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने इंस्टीट्यूशनलाइज करना है अपने यहाँ. एक स्टैंडिंग इंक्वायरी कमेटी बनानी है, या डिपेंडिंग ऑन हाउ बिग द एजुकेशन इंस्टीट्यूट इज. अगर बड़ा है और फैला हुआ है तो हर उनके स्कूल में एक एक कमेटी होनी चाहिए, एक उनके हेड ऑफिस में होनी चाहिए. The committee members need to be trained. The committee needs to be made according to the specifications given in the law. और फिर बच्चे क्या कर सकते हैं, तो वो बच्चों के पास वो कमेटी जो है वो प्लेटफॉर्म होती है, वहां जाके उन्हें बता सकते हैं. It's the responsibility of the managements of schools to form these standing inquiry committees with at least one female member. अगर ज्यादा औरतें हैं तो 2 औरतें, 1 मर्द भी हो सकता है. और फिर सारे टीचर्स को, एडमिन को बताएं कि सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए या रिपोर्ट करने के लिए ये हमने एक कमेटी बनाई है, अनाउंस करें. बच्चों को बताएं कि सेक्सुअल हरासमेंट होती क्या है. यू नो, आप कैसे किसी को देखते हो, गलत नियत से कोई देखता है, somebody's gaze makes you uncomfortable, it can be sexual harassment. Somebody saying something, verbal भी हो सकती है, कोई inappropriate बात, you know, anything of a sexual nature that somebody says, it makes you uncomfortable, even that is sexual harassment. फिर उसके बाद physical conduct of a sexual nature, आप, you know, touching somebody inappropriately, or it goes all the way up to sexual assault. तो लिख के कुछ टेक्स्ट मैसेज भेज देना inappropriate of a sexual nature, को वीडियो इस किस्म की किसी को भेज देना, ये सब इसकी जो लीगल डेफिनेशन है उसमें आ जाता है. फिर मेकिंग इट अ कंडीशन कि आप जैसे क्विड प्रो को होता है,
आप मेरे लिए ये करो, उसके बदले में मैं आपका ग्रेड बेहतर कर दूंगा या आपको क्या अच्छा कर दूंगा. सो ये बच्चों को बताना इन अ वेरी एज अप्रोप्रिएट मैनर कि क्या होता है, और अगर कोई ऐसे करे तो these are the people that you go and talk to. Absolutely. ये That's तीन लोग same, हैं, उन्हें probably same is the case with corporate sector as well. Public and private एब्सोल्युटली, sector, जो एब्सोल्युटली जी, सारे बिल्कुल steps हैं वो same है. बिल्कुल वही है सबके लिए. तो सब ये स्कूल्स में फोकस करना बहुत जरूरी है. ये जो इस तरह के केसेस निकल आते हैं तो वो एक तरह का हमारे लिए उसको अपॉर्चुनिटी भी ले सकते हैं. वो मैं सुन रही हूँ खबरों में कि जी उन्होंने कोई कमेटी बना रही है और इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, आप वो वो सब लाहौर जरूर में एक करो. स्कूल मैंने के अंदर हुआ है तो वो जी उसके बारे में बिल्कुल आजकल बिल्कुल. काफी बात चल रही है. हाँ, तो गवर्नमेंट को ये कहना चाहिए कि हाउ कम यू हैवंट कंप्लाइड विद दिस लॉ येट. आपने जो लॉ बना दिया तो आप इंश्योर तो करो कि ऑर्गेनाइजेशंस, वैसे तो जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो खुद से करती हैं. अभी जो इरिस्पॉन्सिबल वाली हैं वो रह गई पीछे, जिन्होंने 10 साल हो गए लॉ को बने हुए, अभी तक कंप्लाई नहीं किया. नहीं, दिस शुड I हैव अ know a लॉन्ग lot of टाइम अगो. organizations in Lahore, corporate sector, public sector में भी जो बड़ा सीरियसली इसको उन्होंने अप्लाई किया हुआ है. वो बल्कि बहुत अच्छे प्रोफेशनल से. कोर्सेज हाँ हर साल होते हैं, कमेटीज के भी बिल्कुल. होते हैं, उनके जो स्टाफ है या उनकी जो इम्पोर्टेंट लोग हैं जिनका बहुत ज़्यादा लोगों के साथ पब्लिक डीलिंग है, तो ये बड़ी ट्रेनिंग्स करवाते हैं बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से ये. बहुत अच्छे से. और इसमें बहुत I अच्छे से. must commend the job that you are doing and the team that you have developed of so many trainers who are going out into the cities and who are helping government and private sector deliver those trainings very regularly. So it's a very जी. commendable job, माशाल्लाह, जो आपने किया है. आपने बहुत से और ट्रेनर्स को भी इसके बारे में ट्रेन करके. या मैं आपको बताऊं फायसा, बहुत सी यूनिवर्सिटीज और बहुत सी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे जो अपने ट्रेनर्स ट्रेन करवाते हैं, और फिर वो ट्रेनर्स जो हैं उनके वो इंटरनली ट्रेनिंग्स ऑन गोइंग बेसिस पे करवाते रहते हैं. I think it's the one of the smartest way to deal with it. बिल्कुल, क्योंकि हम कहाँ कहाँ जाके करवा सकते हैं ना. इवन दो व्हेनेवर समबडी आस्क्स अस टू, पहले तो ट्रैवल करते थे हर जगह, अब ये ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हो रही हैं और अब तो बहुत आसान हो गया, मैं अपने कमरे में बैठ के करवाती रहती हूँ. True. लेकिन जो ट्रेनर्स ट्रेन हुए हैं वो अपने अपने यूनिवर्सिटीज में या पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में वो इंटरनली trainings करवाते रहते हैं, because it's important for people to know what sexual harassment is. You know, it's still a tabooed topic in our country and people don't like to talk about it. वो कहते हैं बुरे लफ्ज, हम अच्छे लोग, हम बुरी बात नहीं करते, बुरे True. काम करते हैं, बुरी बात नहीं करते. तो थोड़ी हिपोक्रेसी सी लगती है. True. तो True. आप उन्हें बताओ कि बात करना बुरी बात नहीं है, आप गलत काम को रोकने के लिए बात कर रहे हो, और दूसरा ये कि बात नहीं करेंगे तो मसले को हल कैसे करेंगे. True. तो बात करना तो बहुत जरूरी है, और आप अपने काम की जगह पे नहीं, आप घरों में बात करो. जितने प्रोफेशनल्स के साथ हम काम करते हैं, यू नो, मोस्ट ऑफ देम आर यंग प्रोफेशनल्स. उनके घरों में शादियां हुई हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, चाहे मर्द हो या औरत हो, उनके बच्चे घर में जो होते हैं, तो हम उन्हें बताते हैं कि आप अपने बच्चों से बात करो. स्कूल में तो वो बाद में जाते हैं, घर से ये बातें शुरू होती हैं. तो यू नीड टू, दीज आर लाइफ स्किल्स that parents need to be giving their children. You know, what are the private parts of your body that nobody is allowed to touch. आपने किसी को नहीं हाथ लगाना, कोई आपको नहीं, अगर कोई हाथ लगाए तो you need to move away from that person. Go tell someone about it. और किसको जाके बताओ, घर में हो तो किसको बताओ, स्कूल में हो तो किसको बताओ. The more clear the instructions that you give your children, the easier it will be for them to follow. तो आप बच्चों से बात करो. बहुत से मर्दों को लगता है कि जी हमारे घर की औरतें बड़ी शरीफ, उनके साथ ऐसा नहीं होता, ये काम पे जो आती हैं औरतें ये तो होती है ऐसी, इसी वजह से मर्दों के साथ काम करती है, which is not true. तो घर की औरतों से कभी मर्द बात नहीं करते इस तरह के टॉपिक्स पे, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके घर की औरतों के साथ क्या हो रहा है. So I think it's very important that men and women start talking to each other about these issues, because it is a इंसानी behavior का मसला है.
तो मर्दों के साथ भी होता है और सिर्फ औरतों का नहीं है, मर्दों के साथ भी होता है, ट्रांसजेंडर्स के साथ भी होता है। तो इट्स हाई टाइम, वी नीड टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। एक दूसरे के इशू का पता होगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे इश्यूज रिजॉल्व करने में। बिल्कुल। So I think it's important that we start talking to our children about it. It's very important that we start talking to one another about it. मर्द मर्द आपस में बात करें, औरतें औरतें आपस में बात करें, मर्द औरतें आपस में बात करें, तभी जो थोड़े से गलत काम करने वाले हैं ना, तब उनको फिर रोकना बहुत आसान हो जाएगा। True. हम जब बात नहीं करते तो वी आर एक्चुअली गिविंग देम मोर पावर कि अच्छा ठीक है, आप हमें भी करते जाओ, बाकी लोगों को भी करते जाओ हरास। तो I think once we start talking about it more openly, तो फिर उन लोगों की गलत काम करने की स्पेस जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। Absolutely. तो I उनको think we really करना need भी to do आसान हो जाएगा लोगों के लिए, क्योंकि इसका that. एज से ताल्लुक नहीं है, ये तो किसी भी एज ग्रुप के साथ, किसी भी सोसाइटल बिल्कुल, सेक्टर के yeah, साथ हो सकता है, इसका एज ग्रुप के साथ कोई हाँ, ताल्लुक नहीं है। मैम, एक क्वेश्चन हमें रिसीव हुआ था, वहाँ यंग स्टूडेंट है, उन्होंने कहा कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम रेडियो टीवी पे हमने नहीं देखे। ये लॉ जैसे जी, आपने कहा कि 10 साल से ज़्यादा हो गया इसकी इम्प्लीमेंटेशन, जैसे मैंने भी right, देखा है खुद अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, कुछ हम्म, रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशंस तो इनिशिएटिव लेके बहुत अच्छे से इसको अप्लाई करी हैं, और उन्होंने ज़ीरो टॉलरेंस भी बना ली है, पॉलिसी अपनी बना ली है। लेकिन अभी बहुत सारा गैप है जो फिल होने वाला है। तो कोई आपके हाँ, नज़र से ऐसी पॉलिसी गुजरी हो, या आपका माशाल्लाह बड़ा सेनेटर्स और इनके साथ मिलना जुलना रहता है इस पॉलिसी से लेके, कभी कोई आपने सुना हो कि गवर्नमेंट इन चीज़ों के ऊपर कोई नेशनल लेवल पे प्रोग्राम बनाना चाहती है इसको छोटे, क्योंकि देखिए जैसे आपने कहा पेशावर में जिस तरह से लोगों को समझ आएगा, और पंजाब में या सिंध में उनकी लोकल लैंग्वेज और कल्चर्स के हिसाब से भी हमें देखना पड़ेगा। कोई आपके हाँ, नज़र से ऐसी इनिशिएटिव गुजरी हो रिसेंटली जहाँ पे रेडियो या टीवी या और मीडियम है बहुत सारे, अब तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा मीडियम है, इनके थ्रू जी बिल्कुल। कोई रेगुलर ट्रेनिंग्स हो ताकि लोगों के पास अवेयरनेस हो? हाँ, मैं आपको वैसे एक बात बताऊं कि अ, हमने या जब आशा मेंबर्स ने ये काम शुरू किया था, तो उस वक्त ये लोग सेक्सुअल हरासमेंट बोल नहीं सकते थे। लोग कहते थे कि देखो कैसी बुरी औरतें हैं, कैसे बुरे बुरे लफ्ज बोलते हैं, तो यू कुडंट यूज दीज वर्ड्स, सेक्सुअल हरासमेंट। आज अगर आप देखो तो आई थिंक कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जहाँ पे टीवी पे या अखबारों में या सोशल मीडिया पे सेक्सुअल हरासमेंट आपको सुनने को नहीं मिले या पढ़ने को नहीं मिले। तो ये पिछले 20 साल में हम जहाँ से यहाँ पहुंचे हैं, उसको एक्नॉलेज करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि बिल्कुल। आशा जब शुरू हुई थी तो उनके 3 ऑब्जेक्टिव्स में से एक ऑब्जेक्टिव ये था कि लोगों को ये एक्नॉलेज करवाना कि सेक्सुअल हरासमेंट इज अ सोशल इशू और इंसानी रवैयों का मसला है, और इसको हम खत्म कर सकते हैं, या इस मसले को हम दूर कर सकते हैं अपने माशरे से। लोगों को बताना है कि ये मसला है, और अगर कोई किसी को जिनसी तौर पे हरासा करे तो आप उसे रोको। बिल्कुल। तो ये जो एक ऑब्जेक्टिव था उसके ऊपर बहुत काम किया, और मैं आपको बताऊं मीडिया ने बहुत साथ दिया इसमें। ये तो मैं अभी किसी कमर्शियल टीवी पे नहीं बैठी तो मैं बोल सकती हूँ, जियो फॉर एग्जांपल, जियो टेलीविजन वालों ने बहुत काम किया। आशा के बड़े जो स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स में से जियो था, और इनके डिजाइनर्स फ्री कार्टून्स बना, डॉक्टर फौजिया ने और साबिर नजर ने जो टेक्सोनॉमी ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट बनाई थी, वो जियो वालों ने उसके छोटे छोटे मैसेजेस बना के, जैसे पब्लिक सर्विस मैसेज, बगैर पैसों के वो पूरा पूरा महीना चलाते थे। जबरदस्त। फिर जब ये लॉ पास हुआ तो डॉक्टर फौजिया ने बहुत से मीडिया के लोगों की, राइटर्स और प्रोड्यूसर्स की ट्रेनिंग्स करवाई, लाहौर में भी, कराची में भी। तो उसका शुरू में हमें लगता था कि कोई फायदा ही नहीं हुआ, यानी कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन अब हम पिछले कुछ साल से देख रहे हैं कि उन ट्रेनिंग्स का अब फायदा नजर आ रहा है। बिल्कुल, कई ड्रामास में पहली दिखाया एक है। कमर्शियल फिल्म जिसमें ये एड्रेस किया, एक्टर इन लॉ, उसका अच्छा। पूरा एक सेगमेंट सेक्सुअल हरासमेंट पे था। और हम्म। कितने लोग फिल्में देखते हैं तो उन्हें ये पता चलता है, अच्छा सड़क पे खड़ी लड़कियां अगर कोई लड़के छेड़ रहे हैं तो दैट इज सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है, तो 509 को इस्तेमाल करके आप रिपोर्ट भी कर सकते हो। कई ड्रामा सीरियल्स हैं जिनमें अब ये इशू का जिक्र हमें सुनने को मिलता है। और वो क्योंकि मैं काम ही ये करती हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स में से कोई,
आपने ये ड्रामा देखा, उसमें सेक्सुअल हरासमेंट हो का वो बता रहे हैं. सो ये जो चेंजेस हमें नजर आ रहे हैं, इसके पीछे बहुत से सालों का काम है, और यही काम और बहुत ज्यादा लोगों को करने की जरूरत है. आई थिंक पेमरा कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट. कि हर चैनल को, जो आपका होता है ना कि 3% या 5% टाइम आपको पब्लिक सर्विस मैसेजेस को देना होता है, तो किस किस तरह के पब्लिक सर्विस मैसेजेस, उसमें दिस हैज टू बी वन ऑफ दोज टॉपिक्स दैट नीड्स टू बी कवर्ड. आई थिंक तो वेरी कैमरा अगर बहुत कह जबरदस्त दे आपने बात की है. कि हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट के पॉलिसीज बनाने से सारे काम नहीं होते. उन्होंने कानून बना दिया, हमने और आपने मिलके इम्प्लीमेंट करना है. तो हम सबको ये देखना होगा कि अच्छा मेरा क्या इसमें रोल बनता है, व्हाट डू आई नीड टू डू, किसको क्या करना चाहिए, वो भी ठीक है. लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कोई काम, कॉन्क्रीट काम हो, तो each and every one of us needs to ask ourselves this question, what am I going to do about it, or what can I do. और हम सब अपना अपना काम करें, चाहे हम घर में अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से बात करें, या हम सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके, या मैं अपनी कुलीग को बताऊं मुझे पता चल गया, मेरी, हम सब जो सुन रहे हैं हमें पता चल गया, तो हम सब चेक करें कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में इस लॉ की कंप्लायंस हुई भी है कि नहीं हुई. अगर नहीं हुई तो आप इंटरनेट से, आशा की वेबसाइट हमने अभी तक जिंदा रखी हुई है, आप वहां से लॉ को मैंने भी क्लिक डाउनलोड किया था करो. उसको. आपने देखा ना, तो वो वहां से आप डाउनलोड करो लॉ, उसको पढ़ो, अपनी मैनेजमेंट को, एचआर वालों को जाके दो, अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में कंप्लाइज कराओ आप, अगर अभी तक नहीं हुई भी वहां पे. तो हम सब मिलके जब करेंगे, और मीडिया वालों पे आई थिंक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये लोगों को एजुकेट करने की, जो है ना. हम लोगों ने बहुत साल टॉक शोज में इस टॉपिक को कवर किया, अभी भी करते हैं, लेकिन आई थिंक जब ये ड्रामों और फिल्मों के जरिए ज्यादा बात होगी, आप कोई प्ले लिख रहे हो, उसमें कोई एक कैरेक्टर ऐसा डाल दो जो सेक्सुअल हरासमेंट फेस कर रहा है, चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है, जैसे उडारी था, उसमें चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को उन्होंने दिखाया. आप काम की जगह पे किसी एक कैरेक्टर के साथ ऐसे हो रहा है, उसने कैसे इंक्वायरी कमेटी को रिपोर्ट किया, कैसे उसका 30 डेज में इंक्वायरी कंप्लीट हो गई अकॉर्डिंग टू द लॉ, और कैसे जो गलत काम कर रहा था उसको पनिशमेंट हुई. आज सुबह ही मैं एक कमेटी मेंबर से, कमेटी की चेयर है बहुत बड़े गवर्नमेंट के इदारे की, उनसे बात करी थी, तो वो कह रही थी कि मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस ये है कि जब आप किसी को हरासमेंट करते हुए कोई रिपोर्ट होता है, और आप उनसे बात करते हो, और आप सिर्फ उनको उनकी काउंसलिंग करो, या अगर थोड़ा सा सीरियस मामला है तो आप उनको सिर्फ एक वार्निंग लेटर इशू कर दो. इस दफा तो सिर्फ वार्निंग लेटर दे रहे हैं, अगर दोबारा आपके खिलाफ कोई शिकायत आई तो फिर वील टेक मोर सीरियस एक्शन. तो वो कहती है कि मेरा 10 साल का, कह रही थी कि मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस ये है कि लोग नहीं दोबारा ऐसी बात करते, because I really believe that majority of the men and women and transgenders are actually very good people. Yes. We just need to educate them a little, we just need to inform them, and they don't behave inappropriately. Absolutely. और ये और लोगों से भी जब मैं यही बात सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सजाएं देना मकसद नहीं है, लोगों को बताना कि ये जो आपने बात की गलत है, अब नहीं करना, तो वो नहीं करते. Mostly So that is what we all need to do. Yes, mostly आपने बिल्कुल सही कहा कि it works if you tell them this is where you have crossed the line and this is what we are not going to tolerate in future. और ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है मैम. इसी से रिलेटेड आपकी एक और क्वेश्चन आया हुआ था, वो ये है कि जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो जो विक्टिम है वो बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में या ड्यूरिंग, तो उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी तो आई एम श्योर हर कोई मेंटेन करने की कोशिश करता है, बट लॉ भी कहता है बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल, लेकिन समहाउ कभी कभार ऐसा होता है कि ये बातें लीक हो जाती हैं, पता चल जाता है, तो फिर वो जो इंसान है जिसने करी होती है कंप्लेन, वो उसके लिए क्या क्या प्रोटेक्शन का तरीका है इस लॉ में, क्या प्रोटेक्ट करता है लॉ उसको? आप देखो कि लॉ कहता है कि इसको आपने एक तो कॉन्फिडेंशियली
हैंडल करना है केसेस को, और दूसरा लॉ ये कहता है कि देयर विल बी नो रिटेलिएशन। तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट है, जो आपकी इंक्वायरी कमेटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखें कि किसी किस्म की रिटेलिएशन नहीं हो, neither against the complainant nor against any of the witnesses if there were any. तो मैनेजमेंट्स और इंक्वायरी कमिटीज मिलके जब देखेंगी कि कोई रिटेलिएशन नहीं हो, तो जो कंप्लेनेंट है दे वोंट बी एज वल्नरेबल। आप केस को खत्म करते हो, आप दोनों की पार्टीज की काउंसलिंग करते हो। एक तो बस मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब आपके केस से दोनों पार्टीज गुजर रही हैं, आपकी इंक्वायरी के दौरान उनके बिहेवियर को बेहतर करना और उनको एम्पावर करना, जो कंप्लेनेंट है खास तौर से उसको एम्पावर करना इस प्रोसेस का हिस्सा होना चाहिए, ताकि अगली दफा अगर वही इंसान, मर्द या औरत, कंप्लेनेंट तो कोई भी हो सकता है, ट्रांसजेंडर, तो अगली दफा अगर उनके साथ ऐसा हो तो दे शुड बी empowered enough to handle it on their own, or they should be able to stop the person from harassing them in a very confident manner. आप किस तरह से दूसरे इंसान को रोकते हो पहली दफा जब वो कुछ ऐसी बात करे इनअप्रोप्रिएट जो आपको अनकंफर्टेबल कर रही है, बगैर किसी डर के, बगैर जजमेंट के डर से या किसी भी डर के बगैर आप उन्हें अगर ये कहो, you know, whatever you said, I don't appreciate it, please don't say this again, or please don't do this again. लेकिन साथ ही मैं ये कहूंगी कि ये यहाँ पे सीनियर मैनेजमेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल बनता है। Their employees or the students in an educational institution, they need to hear over and over from people in the senior management. If any of you is being sexually harassed, you need to speak out. We want you to speak out and report it. No negative action will be taken against you. Absolutely, absolutely. तो वो स्पेस क्रिएट करना मैनेजमेंट और बाकी लोगों का काम होता है, where people are not afraid of being judged or stigmatized. True. You know, कभी इस वजह से नहीं बोलते कि इर्द गिर्द लोग क्या कहेंगे। True. फिर जो हमारे myths हैं, process पूरा, it is very painful. It's very traumatic for anybody to speak up in the first instance, and once this whole process starts, एक और क्वेश्चन इसी से लिंक मैम आया था कि ये एविडेंस किसको कहते हैं, और आपकी अपनी जो एक्सपीरियंस गुजरी है 10-11 सालों की, आपने कितनी परसेंट केसेस को सक्सेसफुली कंक्लूड होते हुए देखा है? A very high percentage. I will say very easily 98 or 99% of the cases get resolved. Okay. Punishment होती है या काउंसलिंग होती है, मकसद पनिश करना नहीं है लोगों को, मकसद उनका रिफॉर्म करना है, उनके बिहेवियर को ट्रांसफॉर्म करना है, ताकि गलत काम करना छोड़ दें, सही काम करें। तो जहां जहां अच्छी नियत से कमेटी मेंबर्स और अच्छे तरीके से ये लेके चल रहे हैं, वहां पे बहुत अच्छे फैसले होते हैं। You're right, and it's always a concern कि जी there's no evidence in these cases, there are usually no witnesses, क्योंकि ऐसे काम तो लोग अकेले में करते हैं, which is true. लेकिन हम जब भी अवेयरनेस सेशंस करते हैं तो हम हमेशा ये लोगों को बताते हैं कि अगर आपके पास किसी ने कोई इनअप्रोप्रिएट मैसेज किया या इनअप्रोप्रिएट वीडियो भेजा, तो हमारा पहला रिएक्शन ये होता है कि हम उसे डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने का मतलब है कि हमने एविडेंस जाया कर दी। तो कुछ भी सेल फोन पे आया, व्हाट्सएप में कुछ आ गया, आपकी ईमेल में कुछ आ गया, तो जितना भी इनअप्रोप्रिएट क्यों नहीं हो, आप उसको सेव कर लो, क्योंकि कभी भी आप डिसाइड करो कि आपने ये केस रिपोर्ट करना है, तो यू कैन यूज दैट एज एविडेंस। मैं तो ये भी कहती हूँ कि वैसे तो कहते हैं कि अनएथिकल होता है किसी की परमिशन के बगैर उनको रिकॉर्ड करना, but say for example if somebody calls you to their office and they say or do something inappropriate, और कोई विटनेसेस नहीं है, आप अलग कमरे में हो और दरवाजा बंद है, और आप अगली दफा उनके ऑफिस में जाते हुए डरते हो कि फिर कोई ऐसी बात नहीं हो, तो मेरी किताब में तो अगर आप अपनी जान बचाने के लिए
अपना ये मसला रिजॉल्व कराने के लिए अगर किसी को उसकी बगैर इजाजत के रिकॉर्ड कर लो, तो आई डोंट थिंक दिस, क्योंकि आप सेल्फ डिफेंस में कर रहे हो। सेल्फ डिफेंस में तो आप किसी को गोली भी मार दो तो वो भी समझ में आती है कि अपनी जान बचाने को आपने गोली चला दी। तो यहाँ पे अगर अपने आप को बचाने को अपने हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ऑनर का और रिस्पेक्ट का, और आप जो भी कह लो, इंटेग्रिटी बचाने के लिए आप अगर किसी को रिकॉर्ड कर लो बगैर इजाजत के, सिर्फ इस वजह से कि आप उसे एज एविडेंस यूज कर सको, ये प्रूव करने के लिए कि आप किस तरह के हालात से गुजर रहे हैं, आपको क्या सुनना या बर्दाश्त करना पड़ रहा है, तो मेरी किताब में there's nothing wrong with it, ठीक है ना। क्योंकि अकेले में अगर कोई गलत, लोग कई दफा लोग मुझे कहते हैं कि नहीं लेकिन ये तो गलत है, हाँ गलत तो है, लेकिन जो दूसरा इंसान आपके साथ कर रहा है वो भी तो गलत है ना, उन्हें ये नहीं करना चाहिए। तो आप अगर अपने को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हो तो आई डोंट थिंक there's anything wrong with it। फिर भी हर इंसान का अपना डिसीजन होता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है और आप अपनी जान बचाने के लिए ये काम कर रहे हो जो अदरवाइज हाँ ठीक नहीं है, लेकिन यू आर डूइंग दिस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, to prove that you're not doing anything wrong, somebody is behaving inappropriately with you। तो मेरी किताब में वो ठीक है, आप ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, किसी का कोई कुछ भेजी हुई चीज उसको आप सेव कर लो, ये सब एविडेंस के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। किसी ने कुछ लिख के आपको दिया कागज पे, आप उसको संभाल लो, आप गुस्से में उसको फाड़ के फेंक नहीं दो, क्योंकि एज एविडेंस फिर आप विटनेसेस क्रिएट कर सकते हो। कोई आपसे गलत किस्म की बात करता है, आप वहां पे किसी को कहो जिसको आप टोटली ट्रस्ट करते हो कि आप जरा इधर खड़े होकर सुनना कि हम जब इनके पास जाते हैं तो हमें किस किस्म की बातें सुननी पड़ती हैं, या whatever it might be or whatever the situation might be, you create witnesses। फिर हम ये भी कहते हैं कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो तो it's very important that you go and talk to somebody about it। आप किसी दफ्तर से निकले या किसी के कमरे से निकले, उन्होंने आपसे बहुत गलत बातें की हैं, यू आर वेरी अपसेट, मे बी यू आर वेरी इमोशनल, यू माइट बी क्राइंग, तो यू go to the person that you trust completely, True। tell them what happened। तो वो ये तो नहीं कह सकते कि जी हमने देखा या हमने सुना, लेकिन वो ये जरूर कह सकते हैं कि जी फलां वक्त ये हमारे पास आए थे या इन्होंने आके हमें ये बताया था और हमने देखा था कि जी ये he or she was very emotional, और उनकी हालत ऐसी थी कि पता चलता था कि हाँ ये किसी इस तरह के एक्सपीरियंस से अभी गुजरे हैं। तो वो इस तरह की बात जाके आपके साथ कम से कम खड़े होके कह सकते हैं। तो जब आप किसी से बात करते हो तो एक तो एस्पेक्ट उसका ये है कि इट गेट्स आउट ऑफ योर सिस्टम, जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। दूसरा ये कि जब आपने किसी को बता दिया, या इवन इफ यू राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, देन इट बिकम्स वेरी रियल फॉर यू। क्योंकि कभी कभी लोग बाद में, आपके हफ्ता गुजर गया, 10 दिन गुजर गए, तो यू स्टार्ट डाउटिंग योर ओन फीलिंग्स, है ना, कि मेरे साथ पता नहीं ऐसे हुआ भी था, या मे बी आई वाज़न्ट फीलिंग टू वेल, और मैं ओवर सेंसिटिव थी, मे बी ही और शी डिडंट मीन इट दिस वे, मुझे ऐसा लगा। लेकिन जब आप उसी वक्त किसी को बता देते हो तो देन इट बिकम्स वेरी रियल। तो वो इस वजह से बता देना जो है वो अच्छी बात होती है, क्या हुआ कैसे हुआ। ये जो डर है ना कि लोग क्या कहेंगे, वो भी हम सब ने मिलके निकालना है। जब तक हम एक दूसरे को जज करते रहेंगे, दूसरे लोग हमसे बात नहीं करेंगे। तो जो मैं पहले कह रही थी कि जब हर कोई अगर अपने आप से ये पूछे कि व्हाट रोल कैन आई प्ले, तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स दैट वी ऑल कैन प्ले इज टू नॉट जज अदर्स। हम सब एक दूसरे को जज करना छोड़ेंगे तो लोगों के लिए ये बात करना आसान हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत ज़बरदस्त आपने बात कही है, और थैंक यू सो मच। आई थिंक आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया लोगों को। आई एम श्योर जिन्होंने हमें क्वेश्चंस भेजे थे, अगर हमें वो बाद में भी क्वेश्चन भेजेंगे इस प्रोग्राम को देखने के बाद, तो हम आपसे शेयर करेंगे और उनके साथ गाइड करने की कोशिश करेंगे। मैम माशाल्लाह आपने यू हैव लिव्ड वेरी फुल लाइफ, माशाल्लाह बहुत मीनिंगफुल लाइफ आपने गुजारी, और आप बहुत इंपॉर्टेंट काम में
इस वक्त हमारे हम सबको साथ दे रही हैं. You must have made wonderful memories. Oh, And tons you of must have wonderful. met a lot of mentors who would have helped you through different phases of life in shaping you who you are. Would you like to take this opportunity to name a few mentors or share with us some fond memories that are with you? हाँ, मैं अगर जैसे जस्ट इन अ ग्लांस मैं आपको बताऊं, मेरी हाई स्कूल की टीचर मिस गाय पेशावर कॉन्वेंट में, I still remember the little things that she used to teach us. Very important in making me who I am today. So Mashallah. उनकी बातें कॉलेज यूनिवर्सिटी के ज़माने की टीचर्स भी, लेकिन मैं अब की ज़िंदगी में अगर देखूं तो आई थिंक माय फैमिली, और अगर स्पेसिफिकली कहूं तो माय सिबलिंग्स डॉक्टर फौजिया सईद एंड डॉक्टर कामरान अहमद. Both of them are my younger siblings. I love them a lot because they are my siblings, but I have a lot of respect for both of them because I learned so much from them, I can't tell you. Mashallah. बड़े उम्र में होने से फर्क नहीं इतना पड़ता, किसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, किसका एक्सपोजर ज्यादा है, किस तरह के वो इंसान है, मैं हर वक्त उनसे सीखती हूँ. और उसके बाद अगर मेंटोर्स, आमतौर से लगता है कि आपसे बड़े लोग जिनसे आपने सीखा, तो मेरे माँ बाप उसमें आ जाते हैं, और दोनों अपने अपने तौर पे लाइक दे आर टोटली डिफरेंट पर्सनालिटीज, लेकिन दोनों से चीजें सीखी. हमारी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल का लफ्ज नहीं है, ये हमने अपनी अम्मी से सीखा कि जो भी काम है वो कर जाना, यू फिगर आउट हाउ यू विल डू इट, बट यू डोंट एवर गिव अप. अपने वालिद से हमने सीखा परसिस्टेंस और ऑनेस्टी और बहुत सी चीजें. मेरे छोटे बहन भाई से अभी तक सीखती हूँ. मेरे बच्चे, मैं जहाँ फंसती हूँ किसी ना किसी चीज में, प्लीज हेल्प मेरी सब्जेक्ट लाइन होती है, एंड यू नो आई शूट आउट एन ईमेल टू माय डॉटर, एक बेटे को, दूसरे बेटे को, बेटी को, एंड दे ऑलवेज हेल्प. माशाल्लाह. क्योंकि मुझे पता है उन तीनों की स्ट्रेंथ्स क्या है, किस तरह की हेल्प चाहिए, कौन से बच्चे को कहनी है. उम्र में बड़े छोटे होने से फर्क नहीं पड़ता. मेरे बच्चे जो है वो भी, अगर उनके लिए एक बात कहूँ तो मैं ये कहूँगी कि मुझसे बहुत बेहतर इंसान है हर हवाले से. माशाल्लाह. जबरदस्त. हर हवाले से. एंड आई ऑलवेज लर्न फ्रॉम देम. I go to them with my problems. Just wonderful people around me. I think I'm very blessed that way to have such wonderful people around me. Mashallah. I constantly learn from them, and they help out. Mashallah. जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है. And you know, as a part of my work, I've come across such wonderful people. Absolutely. Who are taking this work and doing it on their own. Yeah, बड़े अच्छे से कर रहे हैं. तो आई थिंक ये खुशकिस्मती होती है कि आपकी जिंदगी में इतने सारे अच्छे अच्छे लोग हों जिनसे ये सीखने का अमल जो होता है ये तो म्यूचुअल होता है. आप एक दूसरे से हमेशा सीख रहे होते हो, बड़ों से भी और छोटों से भी. आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट वे. I'm surrounded by a lot of very good people, very good human beings, very capable in every way. का बहुत रोल है. माशाल्लाह, you have a larger than life portrait of your personality. और माशाल्लाह जब भी आपसे कोई मिलते हैं वो बहुत पॉजिटिव वाइब्स आपसे उनको मिलती हैं. तो आपका अपना भी रोल है जो माशाल्लाह इतने ज़्यादा लोग आपकी कैटलॉग में है कि ये सब के सब बहुत अच्छे हैं. इसमें आपका अपना भी रोल है. और आई एम वेरी I think being open to learning. हाँ बिल्कुल, ये सही बात आपने कहा. ये कभी नहीं समझना, आप ऐसे कहते हो तो it makes me very uncomfortable. मैं तो अभी तक I'll turn 66 this year and I'm still learning. माशाल्लाह. कभी इंसान को ऐसे नहीं लगना चाहिए कि अब हमें बहुत कुछ आ गया. हाँ, बिल्कुल. हम हर वक्त सीख रहे होते हैं. True. तो being open to learning I think is very important. Absolutely. सीखते रहे
तो बेहतर इंसान बनते जाते हैं। तो माशाल्लाह मैम, आपका तो बहुत बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है। जाते जाते कोई एक मैसेज जो आप सब जो आपको देख रहे हैं उनको देना चाहें। आप यंग हो तो आपके देखने वाले शायद ज्यादा यंग लोग होंगे, उन्हें मैं यही कहूंगी कि जस्ट गेट टू नो योरसेल्फ। अपने को पहचानो। हम सब के अंदर कोई ना कोई स्ट्रेंथ्स होती हैं। गेट कनेक्टेड विद दोज स्ट्रेंथ्स और फिर उस पे काम करो और बिकम द बेस्ट पर्सन दैट यू कैन बिकम। लेकिन उसके लिए अपने को जानना बहुत जरूरी होता है और अपने को जानने के लिए अंदर देखना, अपने साथ वक्त गुजारना बहुत जरूरी होता है। हम लोग, हमारा फोकस हमेशा बाहर होता है, बट गेट टू नो योरसेल्फ। ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज अ वेरी वेरी स्पेशल पर्सन। अपने को पहचानो, अपने पे काम करो, आप अपने को डेवलप करो एंड बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। माशाल्लाह, That is what I would like to say. थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया। You're most आपने welcome. आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने इतने कैंडिडली हमारे सारे जो टफ से क्वेश्चन लग रहे थे मुझे आपसे पूछने से पहले, आपने उनके बहुत आसानी से जवाब दिए। तो इंशाल्लाह अगले वीक में एक और इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ के साथ हमारी दोबारा से एक नशिस्त होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सबको आसानियाँ पैदा करने वालों में शामिल कर दे और हमारे हाथ से सिर्फ नेकियों के सिलसिले चलें और लोग हमें अच्छे से दुआओं में याद रखने की आदत डाल लें। हमारे अल्लाह करे हमारे से ऐसे काम हो कि लोगों के दिल जुड़ें बजाय कि हम लोगों के दिल तोड़ें। तो इस दुआ के साथ, और मिस मैम आपका बहुत शुक्रिया मिस मिलिया, आपने बहुत टाइम आपका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank थैंक you यू very सो much. I had a very good time talking to you. Thank you so much, ma'am. It's an honor for me that you gave me time and you booked the slot for me. Thank you so much. You're most बहुत welcome. शुक्रिया। Thank you, ma'am. खुदा हाफिज। Assalamu alaikum ji. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz.